ভগৱান ৰামৰ প্ৰশংসা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে ভগৱান ৰামৰ পৰা আমি প্ৰেৰণা লাভ কৰিছোঁ, কিয়নো ভগৱান শ্ৰীৰামে কেতিয়াও জাতিভেদৰ কথা কোৱা নাছিল, তাৰ বাবে আমি প্ৰেৰণা লাভ কৰিছোঁ। আৰু যেতিয়া অযোধ্যাত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰে কেইটামান বিশেষ সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে। দৰিদ্ৰ বা দুখীয়া লোকসকলৰ মাজত যি হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় টকাৰ অভাৱত দৰিদ্ৰ বা দুখীয়া লোকসকলে চিকিৎসা বন্ধ কৰিব নালাগে আৰু কেইবাটাও বিনামূলীয়া সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব লাগে তেওঁলোকক বুলি এইবাৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু কি কৈছে ৰাম ৰাজ্যৰ প্ৰেৰণা লাভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত ৰামৰ প্ৰশংসা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কি কৈছে মুহূৰ্তত আমি জনাম। ভগৱান শ্ৰীৰামক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ বুলি কৈছে এইবাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে, কিয়নো ভগৱান শ্ৰীৰামে জাতিভেদৰ কথা নকয় ভগৱান শ্ৰীৰামে, যাৰ বাবে আমি গৌৰৱ কৰোঁ, প্ৰেৰণা লাভ কৰোঁ। ৰাম ৰাজ্যৰ পৰা দিল্লী চৰকাৰে কেইবাটাও প্ৰেৰণা পাইছে। ৰাম ৰাজ্যৰ পৰা দিল্লী চৰকাৰে কি প্ৰেৰণা পাইছে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাম ৰাজ্যৰ দেশত কোনেও ভোকত থাকিব নালাগে, ৰাম ৰাজ্যৰ দেশত কোনেও ভোকত ছটফটাব নালাগে বুলি কৈছে। দুখীয়াসকলক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে সকলো সামগ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে। গৃহহীনক দিয়া হৈছে ঘৰ, দিল্লী চৰকাৰে গৃহহীনক ঘৰ দিছে। ৰাম ৰাজ্যৰ প্ৰেৰণা লাভ কৰি সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে সকলোৱে সমশিক্ষা লাভ কৰিব লাগে, কোনেও শিক্ষাৰ অভাৱ হ'ব নালাগে, কোনো লোকৰ টকাৰ অভাৱ হ'ব নালাগে। আৰু ধনী মানুহৰ সন্তানে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়লৈ যায়, সকলো সন্তানে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়লৈ যায় আৰু দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু এই প্ৰথা আমি সলনি কৰিছোঁ। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এই প্ৰথা কিন্তু আমি সলনি কৰিছোঁ। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে আজিৰ দিনটোত। আৰু ধনৰ অভাৱত চিকিৎসা বন্ধ হ'ব নালাগে, দুখীয়া বা দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ ধনৰ অভাৱত চিকিৎসা বন্ধ হোৱা দেখা যায়, কিন্তু চিকিৎসা বন্ধ হ'ব নালাগে। সকলো ঠাইতে বিনামূলীয়া পানী উপলব্ধ হ'ব লাগে, পানীৰ বাবে টকা খৰচ কৰিব নালাগে, সকলো ঠাইতে বিনামূলীয়াকৈ পানী পাব লাগে। আমি দিল্লীত বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ, বিনামূলীয়া পানী যোগান ধৰিছোঁ। আমাৰ দিল্লী চৰকাৰে এই যি আমি পণ লৈছিলোঁ, অৰ্থাৎ আমি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেয়া পালন কৰিছোঁ। আমি মাহে পেঞ্চন 2,000 টকা বৃদ্ধি কৰিছোঁ। বৃদ্ধাসকলক আমি তীৰ্থযাত্ৰালৈও লৈ যাওঁ। আমি প্ৰেৰণা লাভ কৰিছোঁ শ্ৰীৰামক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ বুলি কৈছে। বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলক যি লোকে সন্মান নকৰে সেইখন সমাজ আগবাঢ়িব নোৱাৰে, গতিকে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকক সদায় সন্মান কৰিব লাগে। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। লগতে অযোধ্যাত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ৰাম ৰাজ্যৰ প্ৰেৰণা আমি লাভ কৰিছোঁ। শ্ৰীৰামক প্ৰশংসা কৰিছে আৰু শ্ৰীৰামক আমি সন্মান কৰোঁ, গৌৰৱ কৰোঁ, কিয়নো শ্ৰীৰামে জাতিভেদৰ কথা নকয়। গতিকে আমি কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু দুখীয়া বা দৰিদ্ৰ লোকসকলক আমি কেনেদৰে সহায় কৰিব লাগে তাৰ বাবে আমি কেইবাটাও সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ বুলি আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে। মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। तो कहा जाता है कि पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुख शांति वाला अच्छा शासन आज तक कभी नहीं हुआ। रामायण के अंदर इसका कई चौपाइयों और दोहों के अंदर विवरण है, मैं एक बस पढ़ के सुनाऊंगा। दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात राम राज में दैविक भौतिक दुख किसी को नहीं होते। आगे कहते हैं सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, नीतियों के हिसाब से प्रेम से रहते हैं, प्रीति से रहते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आज दिल्ली के अंदर हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण के अंदर जो राम राज्य की परिभाषा दी गई है, जो अवधारणा दी गई है, उसे हमने 10 बिंदुओं के अंदर संजोया है। 10 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हम अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सिद्धांत, राम राज्य के अंदर कभी कोई भूखा नहीं मरता। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जो गरीब लोग हैं हम उन्हें मुफ्त में राशन देते हैं। जो बेघर लोग हैं हम उनके लिए
नाइट शेल्टर्स बनाते हैं ताकि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने 100% अचीव कर लिया, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है, सबको समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। भगवान राम के समय में सब बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी। राजा का बेटा भी गुरुकुल में जाता था, रंक का बेटा भी, भिखारी का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी, किसान का बेटा भी, व्यापारी का बेटा भी, सब लोग गुरुकुल में जाते थे और एक समान सबको शिक्षा मिलती थी। आज हमारे देश के अंदर ऐसी प्रथा चल पड़ी है पिछले 75 साल के अंदर। अमीरों के बच्चे, जिसके पास थोड़ा भी पैसा है, वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। गरीबों के बच्चों को कोई भविष्य नहीं मिलता, अमीरों के बच्चे अमीर होते जाते हैं, उनके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। पिछले 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर हमने इस प्रथा को बदला दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के गरीबों के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा मिलने लगी है, समान शिक्षा मिलने लगी है। अब प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा के अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। एक ही डेस्क पे अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलने लगा है, उनके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने लगे हैं। तो राम राज्य से प्रेरणा लेके अब दिल्ली के अंदर हमने सभी बच्चों को समान और अच्छी शिक्षा देना शुरू किया है। तीसरा सिद्धांत, अगर कोई बीमार हो जाए तो सबको समान और अच्छा इलाज मिलना चाहिए। पैसे के अभाव में किसी का इलाज रुकना नहीं चाहिए। पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। पहले जैसे पूरे देश के अंदर है, गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पे कुछ नहीं होता। अमीर लोग प्राइवेट बड़े बड़े 5 स्टार अस्पतालों में जाते हैं। गरीबों के पास पैसा नहीं है। आज इलाज इतना मुफ्त हो गया कि प्राइवेट में चले जाओ, सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया, मोहल्ला क्लिनिक खोले, पॉली क्लिनिक खोले, अब महिलाओं के मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, सारी दवाइयां फ्री की, सारा इलाज मुफ्त किया। आज दिल्ली के अंदर सभी लोगों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, समान और अच्छा इलाज मिलना चालू हुआ है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं जब ये सारी बातें बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बिल्कुल आइडियल सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन उस दिशा के अंदर काफी बड़े काम हुए हैं। चौथा सिद्धांत, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। और अगर कोई गरीब है तो उसको भी बिजली मिलनी चाहिए। उसके पास अगर पैसे नहीं है बिजली देने के, आज बिजली कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है। बिजली भी आज नेसेसिटी है। बिना बिजली के गरीब आदमी का भी इलाज नहीं चलता। हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज ही अखबार में रिपोर्ट आई है, केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया है, देश के सारे राज्यों का सर्वे कराया है, और उस सर्वे के अंदर आया है कि दिल्ली टॉप के ऊपर नंबर 1 है। दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियां टॉप के ऊपर नंबर 1 है। 24 घंटे दिल्ली के अंदर अब बिजली आती है। पहले जो 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब दिल्ली के अंदर पावर कट नहीं लगते, अब 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। लोगों के पास बिजली के बिल तो आते हैं, 0 बिजली के बिल आते हैं। लगभग 70-73% लोगों को, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको फ्री बिजली मिलती है। 5वां सिद्धांत,
सबको पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए। हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली के अंदर पानी इतना महंगा था, इतना महंगा था, इतना महंगा था, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए के पानी के बिल आते थे। कई कई इलाकों के अंदर पानी नहीं था। आज दिल्ली के अंदर कई इलाकों में हमने पानी पहुंचाया है। अभी भी कुछ इलाके बाकी हैं, वहां भी कोशिश जारी है। लेकिन अब दिल्ली के अंदर मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को फ्री में पानी मिलना चालू हुआ है। पानी पिलाने का तो धर्म कहा गया है हमारे ग्रंथों में। पानी पिलाने का तो धर्म होता है, पानी पिलाने का तो पुण्य होता है। पानी से मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। हमारी सरकार में गरीबों को और मध्यम परिवार के लोगों को फ्री में पानी मिलने लगा है। छठा सिद्धांत, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता जहां जिस परिवार के अंदर बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। ऐसा समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस समाज के अंदर बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। एक तरफ हमारी सरकार बनने के बाद पहले 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती थी, बुढ़ापा पेंशन। हमने उसे बढ़ा के 2.5 गुना कर दिया। अब 2500 रुपए महीना हर बुजुर्ग को पेंशन मिलती है। और दूसरी तरफ बुजुर्गों को हम लोगों ने तीर्थ यात्रा करानी चालू की है। आज तक 75 साल में कभी